जनाब चौधरी अकरम साहब जिंदाबाद, जनाब चौधरी अकरम साहब जिंदाबाद, जनाब चौधरी हयात साहब जिंदाबाद, जनाब चौधरी हयात साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, चौधरी अकरम साहब जिंदाबाद, अकरम साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, चौधरी हयात साहब जिंदाबाद, चौधरी हयात साहब जिंदाबाद। नौजवानों ने कबीलत अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाह کہ چودھری محمد اسلم خان نے کبھی کسی سے رشوت کے معاملے میں ایک پیسہ لیا ہو، ایک دیوانے لی ہو، اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ آج لوگوں کو فرقے میں تقسیم کیے جانے کی بات کی جاتی ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ایک ہی فرقہ ہے، وہ مسلمان ہے، انسان ہے۔ اور یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَجَعَلْنَا شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان کہ ہم نے مسلمانوں کو قبائل میں اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ وہ اپنی پہچان پیدا گئی۔ قبلہ چودھری اسلم صاحب کے ساتھ ہم گاؤں سے نیچے آئے تھے، یہاں وہ دو ہستیاں موجود تھیں۔ اس کے ساتھ میں ایک شعر بھی کہوں گا، اس رنگ برنگی دنیا میں انسان بدلتے رہتے ہیں، گھر سدا ایک ہوتا ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ جب قبلہ چودھری اسلم صاحب یہاں تشریف گاؤں سے نیچے لائے تھے، حاجی لال صاحب، حاجی ولی محمد شیر صاحب یہاں استقبال کے لیے آگے گئے، لوگوں کا قافلہ تھا، بھیڑ تھی، تو اسلم صاحب نے مسکراتے یہ فرمایا تھا، حاجی لال صاحب مذاق کر رہے تھے کہ مجھ پہ جو لوگوں کا اعتماد ہے، میں نے اللہ کے ہاں جواب دینا ہے۔ یہاں سپریم کورٹ میں ہندو ہو، مسلم ہو، پہاڑی ہو، گجر ہو، نگاس ہو، مجھے سب برابر میں ہے۔ اور کون سا ڈر ہمارا قائد ہے اور کس کے ڈر سے ہم کے اوپر سایہ رہا ہے، ہمارے سروں کے اوپر سایہ رہا ہے۔ حیات صاحب سے میری بات ہوئی کہ میرے گاؤں کے یوتھ جو ہے اس کو نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے آج تک۔ میرے گاؤں کی جو یوتھ ہے حیات صاحب، اس میں بہت پوٹینشیل ہے، اس کو ہم نے پیچھے رکھا ہوا تھا، سب میں پوٹینشیل ہے، ہر طرح سے یہ لوگ آگے ہیں حیات صاحب۔ میں وقت کی قلت کو مد نظر رکھوں گا، آپ بڑے ہوئے، آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس اتنا کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ کیسے بھی حالات ہوں، کوئی بھی سرکمسٹانسز ہوئے سر، تو یہ قوم، یہ جو ہے نا، یہ لسانہ کے گھر کے لوگ ہیں سر، یہ غلام حسین لسانی صاحب کے لوگ ہیں سر، یہ آپ کے ساتھ رہیں گے کسی طرح کے بھی سرکمسٹانسز ہوئے۔ ٹکٹ کہاں جاتی ہے، مینڈیٹ کس کو ملتا ہے؟ اور ہاں، میں اس منچ سے ایم سی کے منشور کا بالکل استقبال کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ جو انہوں نے مینیفیسٹو دیا وہ اس پر کھڑے اتریں گے۔ اور حیات صاحب، اس عوام کی سرپرستی میں بات کہتا ہوں، بڑا بڑا گاؤں آپ کی فرسٹ پرائرٹی پہ ہونا چاہیے۔ ہمارے گاؤں کے جتنے مسائل ہیں، کچھ اور ڈبل یہاں پر بھی میٹنگز ہوں گے بھی، ہم اس چیز کی قدر کرتے ہیں، میٹنگز کرو، ڈیموکریٹک رائٹ ہے سب کا، لیکن ایک سر سنکاری، میرا محلہ سنکاری ہے، سنکاری کی روڈ کو انہوں نے سر ایک پولیٹیکل سٹنٹ بنایا،
मुझे पता है सरकारी की रोड 2016 में असेंबली फंड से निकली थी, एमएलए फंड से। असेंबली कोलैप्स हो गई, अकरम साहब ने 2 साल हमारे ऊपर रोल किया है और हमें पता है कि अकरम साहब ने हमारे लिए क्या किया है। मैं आप सबकी इजाजत चाहूंगा और मेरा यही नारा है कि हम आपको जितवाएंगे, कुछ भी सर्कमस्टांसेस होंगे। मैंडेट कहां पे कोई शक वाली बात नहीं है। हमारा 10, 15 और 20 हजार वोट लीड लेके हमारा अकरम साहब जीत कर असेंबली में जाएगा और हम सोए हुए नहीं है, हम दिन रात जागते हैं। हम हर आदमी को साथ लेके चलेंगे और साथ लेके चलते हैं और मैं हर आदमी को ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अकरम साहब के साथ मिलकर चले, अकरम साहब को वोट दें, क्योंकि अकरम साहब एक ऐसे घर से हैं कि वो हर आदमी के साथ चलते हैं। अकरम साहब का घर है जहां हमें कुर्सी मिलती है, अकरम साहब का घर है जहां हमें पानी मिलता है। तो मेरे भाई अफसोस कि अकरम साहब को छोड़ के चले जाते हो, ये आपकी बदनसीबी है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अकरम साहब से जनाब हयात साहब के साथ और इस महफिल के अंदर जिन्होंने आज ये बड़े प्रोग्राम का इनकाद किया है, मैं सबके नाम नहीं जानता। बिलखसूस मैं चौधरी हयात साहब को और उनके साथ जितने भी नौजवान जुड़े हुए हैं उनको दिली तौर पर मुबारकबाद देता हूं कि पिछले एक हफ्ते के अंदर आपने पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर यूथ विंग के नाम से जो प्रोग्राम चला रहे हैं, हमें अगर ये पता होता तो हम अकरम साहब से रिक्वेस्ट करते कि आप ये टिकट हयात साहब के नाम करो, क्योंकि अगर यूथ फील्ड में हैं तो हम चौधरी हयात साहब को इलेक्शन लड़ाते हैं और उसके बाद मुकाबला कराते हैं कि वोट कौन ज्यादा लेता है। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि आज इस महफिल के अंदर हम चौधरी हयात साहब के साथियों को देख के, उसके साथ चौधरी अकरम साहब के साथियों को देख के, और अगर मैं ये कहूं कि हमारे से सफेद रेश बुजुर्ग जो चौधरी असलम साहब, उतनी ही सपोर्टर को करनी है और उतनी ही वोटर को करनी है। बहुत अच्छी बात। ये कोशिश करनी है, ऐसा नहीं कि स्टेज पे बोल के घर चले जाएं और बीवी से भी बात ना करें कि वोट जो है वो चौधरी मोहम्मद अकरम के चुनाव निशान पे लगाना है। अब चुनाव निशान क्या होगा, आज तो अब जो मीटिंग कर रहे हैं वो हल्के बैनर के नीचे कर रहे हैं, कल क्या होगा वो कल की बात होगी। लेकिन एक बात मैं आपको वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूं कि जम्मू व कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बिना चलना बड़ा मुश्किल है और सुप्रीम कोर्ट की धरती पे अकरम साहब जैसा लीडर भी कोई माँ का लाल पैदा नहीं हुआ है जिसने गुज्जर भाई और पहाड़ियों भाइयों की बात को खत्म करके एक स्टेज पे हमें सबको लाया है। ना गुज्जर भाई अकरम साहब की मुखालफत कर सकता है और ना पहाड़ी भाई कर सकता है। जब हमने चौधरी मोहम्मद अकरम साहब को लसाने में ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद बाकी तमाम नौजवान दरामुरा के जिन्होंने ये नौजवानों ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया, उनके लिए मुबारकबाद। और मैं ये कहता चलूं कि ये दरामुरा के नौजवान तहसील सुरन कोट में इनकी पहचान है, इनका एक मर्तबा है और इनकी एक शान है सुरनकोट। इनको मैं कहता चलूं कि आप हैं तो हम बाकी के इलाके के नौजवान जिंदा हैं, आप हैं तब हम आपके पीछे चल रहे हैं और आपकी ये कोशिश और मेहनत हमेशा। कुछ 2-3 दिन पहले मैंने जो मेरी यहाँ की यूथ है, मैंने उनसे ही गुजारिश की थी कि आप एक मेरी मीटिंग का एक प्लान बनाएं, एक शेड्यूल बनाएं। 2 या 3 दिन पहले की बात है, लेकिन आज मैं इस चीज में अपने आप को खुश नसीब समझता हूं कि ये मीटिंग नहीं, ये जलसा बन चुका है। क्या बात है। आने वाले वक्त में हम लोग हर जगह जलसे करेंगे और जो जिस जगह जलसे कर चुके हैं
उनको देखकर निशान ही होगा। मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं, उस पर मोहर लगाकर ये अवाम ने सुरकोट को आगे जिताना है और आगे बढ़ाना है। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इस चीज पर। हम सिर्फ सुरकोट की सियासत की बात नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि हम जिस यूटी के साथ जुड़े हैं, यूटी बोलना मैं गवारा नहीं समझता, लेकिन जिस यूटी के साथ हम जुड़े हैं हमें उस पर भी बात करनी चाहिए, क्योंकि एक पूरे यहाँ पर जो 2019 में जो हम लोगों के साथ नाइंसाफी हुई, हमारी स्टेट हमसे छीन ली गई, हमारी 370 को तोड़ दिया गया, आप लोगों ने उसका जवाब 25 तारीख को, उस रिजेंटमेंट का जवाब 25 तारीख को वोट कास्ट कर देना है। और जो सेंटर में सरकार बैठी है उसको ये बताना है कि आपके डिसीजन से हम खुश नहीं हैं और अपने डिसीजन हम खुद लेना जानते हैं और लेकर रहेंगे इंशाल्लाह। दूसरा, लसाना का घर सबका घर रहा है, उसमें गुजर हो, पहाड़ी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, और मैं खुद को खुशनसीब समझता हूं कि मैं उस घर में पैदा हुआ। और आगे इस चीज को बढ़ाने में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैं भी उसी तरीके से चलूंगा जिस तरह मरहूम मेरे दादाजी चले हैं, अकरम साहब चले हैं। लेकिन आजकल कुछ ऐसे सियासतदान ऐसी नीची सियासत कर रहे हैं जहां गुजर पहाड़ी तो छोड़िए, वो गुजर कौम के अंदर भी एक इज्जत लाना चाहते हैं। मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं, लसाना का घर जब तक है ये नहीं करने दिया जाएगा इंशाअल्लाह। दूसरा, एक टेक्निकल बात पर मैं आप लोगों से जरूर बात करना चाहता हूं। आज से 70 साल पहले या उससे पहले लोगों की डिमांड कुछ और थी, लोग कुछ और डेवलपमेंट चाहते थे, लोग रोड चाहते थे, लोग स्कूल्स चाहते थे, लोग एजुकेशनल सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में डेवलपमेंट चाहते थे। लसाना के घर ने तब वो डेवलपमेंट की, लेकिन आज की यूथ कुछ और डेवलपमेंट में जानती है और मांगती है। और अगर 70 साल में हम वो डेवलपमेंट कर सकते हैं तो मैं अपनी यूथ को ये बता देना चाहता हूं कि आज जो आप लोगों की डिमांड है, जैसे प्लेग्राउंड है, खेल का मैदान है, इंडोर स्टेडियम से, इंशाल्लाह अगर 70 साल में वो डेवलपमेंट कर सकते हैं तो आने वाले वक्त में आप हमें कामयाब कीजिए, हम आज की डेवलपमेंट करके दिखाएंगे इंशाल्लाह आपको। हम जहां भी जा रहे हैं, जहां भी प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं ये देख रहा हूं अकरम साहब नहीं है, लेकिन अगर हमारी यूथ इतनी स्ट्रांग है तो मैं अपनी ऑपोजिशन पार्टी वालों को बता देना चाहता हूं, अकरम साहब के आने पर इंशाल्लाह देख लीजिएगा कि यहाँ क्या सैलाब बनकर निकलेगा। चौधरी अकरम साहब, चौधरी अकरम साहब, शौकत हयात लसानवी। बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर मुझे आपसे बात करनी है, बहुत सारे मंच और भी मिलेंगे जहां पर मैं आप लोगों से वो बात करूंगा, लेकिन टिकट पर बात मुझे आप लोगों से करनी है क्योंकि मैं जानता हूं बहुत तजब्जब है इस चीज में। लेकिन उससे पहले मैं एक शेर बोलना चाहता हूं, टिकट की बात से पहले मैं ये शेर बोलना चाहता हूं, मर्द वो नहीं जो जमाने से बदल जाए, मर्द वो नहीं जो जमाने से बदल जाए, मर्द वो है जो जमाना बदल देगा। टिकट कहीं नहीं जाने वाली इंशाअल्लाह। मैं जानता हूं बहुत प्रोपेगेंडास यहां चल रहे हैं कि टिकट यहां चली जाएगी, वहां चली जाएगी। अलायंस हो चुका है, लेकिन अलायंस फ्रेंडली रहेगा, हम भी लड़ेंगे, वो भी लड़ेंगे, देखेंगे अल्लाह किसको इज्जत देगा। लेकिन टिकट, मैं किसी भी पार्टी की कोई खिलाफवर्जी नहीं करना चाहता, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के बैनर के अंडर हैं, लेकिन 70 साल से लसाना के घर की टिकट अवाम में सुरकोट है और मैं ये जानता हूं कि आने वाले वक्त में भी अगर टिकट लसाना की है तो वो अवाम में सुरकोट है कि नहीं है? आप लोग हैं, मेरी यूथ है, मेरे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं। बाकी आने वाले वक्त में जो भी आप लोगों की डिमांड्स हैं, रोड्स हैं, आप जानते हैं कि 70 साल में जो भी ये अर्थ कटिंग्स हुई हैं, जहां भी स्कूल्स बने हैं, जहां भी हेल्थ सेक्टर है, जो भी है उसको जो बनाया गया है, मरहूम
चौधरी असलम साहब ने बनाया है, अकरम साहब ने बनाया है, और आगे भी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं आप लोगों को ये यकीन दिला देना चाहता हूं कि हम आगे इसी तरीके से चलेंगे। लास्ट बात जो मैं हर जगह कहता हूं, ये कहनी जरूरी है, आप लोग बोलेंगे कि ये रिपीट होती है, लेकिन मैं ये बात जरूर रखना चाहता हूं कि धमकियां मिल रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं, उसका जवाब आप लोगों ने 25 तारीख को अकरम साहब के हक में वोट देकर जवाब देना है, और इंशाल्लाह अकरम साहब को आगे बढ़ाना है। मैं आप सब लोगों का, यूथ का, बड़े बुजुर्गों का बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं बयान नहीं कर सकता हूं कि किस हिसाब की मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूं कि मुझे आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना खुलूस से आप लोग रहे, इतने खुलूस से मेरे साथ चले। आने वाले वक्त में ये यूथ के प्रोग्राम कंटिन्यू रहेंगे। ये कोई इलेक्शन के वक्त की बात नहीं कि हम यूथ को साथ रखे हुए हैं, इलेक्शन से पहले भी हमने यूथ के प्रोग्राम किए। मैं जो मेरी ऑपोजिशन में है उनको बता देना चाहता हूं, आप यूथ कीजिए, हम अवाम करेंगे इंशाल्लाह, सारे अवाम इंशाल्लाह हमारे साथ हैं। बाकी मैं आप लोगों का दोबारा से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। वक्त की थोड़ी किल्लत है, मुझे एक दो जगह और जाना है, आने वाले वक्त में और भी मीटिंग्स होंगी। मैं यहाँ की यूथ को ये गुजारिश करना चाहता हूँ, यहाँ की यूथ मेरे साथ खनेतर चले। हम सिर्फ दारामोड़ा या लसाना नहीं है, हम पोशाना से लेकर खनेतर तक एक बॉडी है। आप लोग मेरे साथ चलेंगे। मैं आप लोगों से दोबारा इजाजत चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।